लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा दोहराया। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती 7 महीनों में दुनिया के 7 युद्धों को समाप्त कर दिया, जिनमें कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, कॉन्गो, रवांडा, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध भी शामिल हैं। In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में भारत और चीन को निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों देश रूस से तेल खरीदकर वॉर को फंड कर रहे हैं। ट्रंप ने नेटो सहयोगियों पर भी कटाक्ष किया कि वे खुद के खिलाफ ही युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं और रूस के साथ डील न होने पर ट्रंप ने कड़े टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। Now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. I mean, you're much closer to this. We have an ocean in between. You're right there. And Europe has to step it up. They can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर अपने उस विचार को दोहराया कि वे हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वे इसे एक प्रतिरोध समूह के रूप में देखते हैं। About 20 years ago, when I traveled to the United States, they asked me this question again, and I said this back then. I don't see Hamas as a terrorist organization. On the contrary, I see it as a resistance group. And Hamas doesn't have weapons or a serious capability. And now they are using what they have to try to defend themselves and trying to protect themselves in this resistance movement. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इजराइल की गाजा में चल रही सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान सांचेज ने इजरायली कार्रवाइयों को 21वीं सदी का सबसे ब्लैक चैप्टर करार दिया। To the victim. Well, then I keep wondering what double standard prevents us from condemning with the same determination the murder of over 60,000
Palestinians in Gaza. Spain firmly recognized the right of the State of Israel to exist and to stand up for its own security. We also condemned in the strongest possible way the brutal terrorist attacks perpetrated by Hamas. उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में 65,000 नागरिकों का मारा जाना बहुत दुखद है। Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इस जघन्य हत्याकांड में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे और वर्तमान केंद्र सरकार जांच में देरी कर रही है। ताई नाम है उसका, मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये फोटो होना अलग बात है। फोटो तो कई बार कैमरा के खड़ा हो जाता, कई बार कहीं पे भी। मैं उसकी खाली फोटो में नहीं जा रहा हूँ, मैं गुलाब कटारिया के साथ फोटो होना सब कुछ नहीं है। पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले बीजेपी के लोग ही थे, फ़ोन करके थाने के अंदर, भाई हमारे कार्यकर्ता को छोड़िए, आप केस मत बनाओ। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके घर वालों से मिला, वो कहने के साहब कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बयान टुकड़े में हुए हैं 2-3 बार, वो बयान पूरे नहीं हुए। 167 लोग बयान होने थे, 166 लोगों के, 15-20 लोगों के बयान हुए अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। पर ये मैं भूल गया कि मैंने डॉक्टर की टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, सब आपने डॉक्टर की टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान लेने वाला कोई हो। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपासन में एक युवक की कथित बेरहमी से मारपीट की घटना का जिक्र किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के परिवार के लोगों ने युवक को इसलिए पीटा क्योंकि उसने नहर के पानी को गांव में लाने की मांग की थी। उनको याद दिलाया खाली 2 बार, तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, और कहते हैं कि परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माता के, और दोनों पैरों में 25 सख्ते कर दिए। अब वो जो है उसको उदयपुर फिर ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है डीजी पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से,
सबसे बात करी, भाई आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोकल थानेदार में पूरी कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि हम इलाज फ्री करवाएंगे, 6 महीने फंड से कुछ पैसे दे देते, गरीब परिवार है, रोन लग के वहाँ स्टेज पे आके। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जीएसटी सुधारों को बचत का त्योहार बताया। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मारुति सुजुकी और हुंडई की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि वे महंगाई और मंदी की बात करते हैं, जबकि भारत में चॉकलेट की तरह कारों की खरीदारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के तमाम मंत्री जब सड़क पर उतरे, दुकानों पर गए, मार्केट्स में गए और दुकानदारों को गुलाब देते हुए उनसे बातचीत की, ग्राहकों से बातचीत की, तो एक बहुत बड़ा फीडबैक आया है। मैं वही फीडबैक शेयर करने के लिए आपके समक्ष बैठा हूं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस खुशखबरी को बताना चाहता हूं। आप देखिए, 2 कंपैरिजंस में दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो कार के एस्पिरेशनल इंडिया के विषय में माननीय मोदी जी बताते हैं, कार की सेल में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, मारुति सुजुकी ने विगत 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मारुति हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 35 ईयर्स। हुंडई के शोरूम में भी 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। जीएसटी के कटौती के पहले ही दिन, कल पहला दिन था, और पहले ही दिन मारुति की कार जो डिलीवरी हुई है वो 25,000 है। 25,000 कार कल मारुति ने डिलीवर किया है। और मारुति के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्केटिंग और सेल्स के, आज अखबारों में भी उनकी कटिंग हम देख रहे थे, पार्थो बनर्जी जी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने 22 सितंबर से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव को लेकर प्रदेशवासियों के लिए एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस अभियान को राजस्थान के व्यापारी, उपभोक्ता और आम नागरिक चला रहे हैं और इससे उन्हें ऐतिहासिक राहत मिली है। सभी को नमस्कार। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ अम्बे आपको सुख, समृद्धि और ख्याति प्रदान करे। मुझे आपसे ये साझा करते हुए बहुत खुशी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्यौहार के शुभ अवसर पर जीएसटी दरों में कमी की एक अनूठी सौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसी वादे को पूरा करते हुए 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से 2 दरें 5 और 18% प्रभावी हो गई हैं। इसी सरलीकरण का प्रत्यक्ष लाभ गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, उद्योग जगत सहित समाज के सभी वर्गों को मिला है। घी जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं में करीब 40 रुपये तक की कमी, तो कारों के दामों में 1 लाख रुपए तक की कमी से आम जन को बड़ा लाभ मिला है। अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, कपड़े, दवाइयाँ, होटल में ठहरना, टैक्सी यात्रा सहित कई चीज पहले से सस्ती हो गई हैं। साथियों, इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए राज्य में 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी फिल्म का पॉपुलर होना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसका जनहित में होना, खासकर युवाओं के हित में, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं है, और समाज और देश को जागरूक बनाने का तथा देशवासियों को अधिक संवेदनशील बनाने का शक्तिशाली माध्यम भी है। लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।